Assalamu alaikum, dear students of Junior 3. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, today we are going to start a new Unit 8, My Playmate. So you are requested to open your textbook, page 49. Open page 49. The title of the poem is My Playmate. Playmate means खेलने वाला दोस्त. Playmate, mate means साथी. तो मेरा खेलने वाला साथी, my playmate. Okay, before going to start the reading with translation and its explanation, let me tell you about this poem. My Playmate is a poem which is written by Mary I. Osborne. This is the poem in which the poetess described the shadow or reflection of a little boy to be his friend. This poem is about a child. You can see in the picture, this is a child who has a friend. You can see his friend is not actually a friend. This friend is the reflection of himself. This is the reflection of himself which he saw on the puddles in the raining season. So Mary I. Osborne describes the little boy who tells about his playmate, that whenever I come outside in the rainy season and I looked in the puddles, I saw a boy upside down who walks with him, though in the upside down way. And he also says that he is always with him on a rainy day, and he also regards his friend a very kind friend who always smiles back at him whenever he smiles at his friend. So whenever he smiles at his friend smiles back at him. So this is a very small and lovely poem. We always do in the rainy season when we see our reflection in the puddles. What is the meaning of puddles? Puddle, a small pool of water. Water का एक छोटा सा जो pool होता है, जो एक झील नुमा या पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं puddle. सो दिस पोएम जो है वो लेट मी टेल यू इन उर्दू, ये एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो कि रेनिंग सीज़न पे जब भी बाहर निकलता है तो उसको वो अपना रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्शन मीन अ पिक्चर दैट यू सी इन मिरर और ऑन वाटर. द पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, आपकी अपनी तस्वीर जब आप शीशे में देखते हैं या पानी में देखते हैं तो जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, तो वो जो है वो जो बन रहा होता है पानी पे, तो वो उसको अपना फ्रेंड कहता है. और ही आल्सो सेज दैट ही हैज़ द विश दैट हिज फ्रेंड कुड टॉक, कि उससे वो बात कर सके. कहता है कि मेरा फ्रेंड तो है, मुझे हमेशा स्माइल बैक करता है जब भी मैं उसको स्माइल करता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो भी मेरे साथ बात करे. और ही इज़ आल्सो श्योर दैट हिज फ्रेंड, हिज प्लेमेट, श्योरली he must be in some strange land. He was speaking there, he talks there, so he can just opposite to me, the word which is opposite to me, he is living in this world. इसकी ये दुनिया है और जो इसका फ्रेंड है जो कि इस पानी की उस साइड पे जो इसकी दुनिया है, तो कहता है कि यकीनन ये दूसरी साइड की दुनिया में यकीनन जो है ये वहाँ पे बात भी करता होगा, रहता भी होगा. तो मेरी विश है कि ये मुझसे कभी बात कर सके. Now let's start the reading with translation. My playmate, मेरा खेलने वाला दोस्त. I often wonder, मुझे अक्सर हैरानगी होती है, how it is, कि ये कैसे होता है, that on a rainy day, कि बारिश वाले मौसम में a little boy, एक छोटा सा लड़का, just like myself, बिल्कुल मेरी तरह, comes out with me to play, वो बाहर आ जाता है with me, मेरे साथ, to play, खेलने के लिए. So in this stanza, Mary I. Osborne says that there is a little boy who comes outside in the raining season. He saw a
reflection of himself in the mirror. So he regards that reflection of himself as his friend. कहता है कि मुझे अक्सर हैरानगी होती है कि रेनिंग सीज़न में ये कैसे होता है कि एक छोटा सा लड़का बिल्कुल मेरी तरह वो मेरे साथ खेलने के लिए बाहर आ जाता है. एंड वी स्टेप इन ऑल द पडल्स, और हम तमाम, स्टेप मीन्स कदम रखते हैं सारे पडल्स में. पडल्स कहते हैं जो पानी का जो इकट्ठा पानी होता है, ठीक है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर हम इकट्ठे कदम रखते हैं. अब कैसे? व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब हम कस्बे में, जब बारिश आती है तो हर जगह कीचड़ ही होता है, पानी पानी ठहरा हुआ होता है. तो जब हम अपने कस्बे में जब वॉक करते हैं तो वो मेरे साथ साथ ही कदम रखता है. बट दो, लेकिन अगरचे, आई स्टैंड द राइट वे अप, मैं सीधा खड़ा होता हूँ. यू कैन सी इन द पिक्चर, मैं सीधा खड़ा होता हूँ. ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, वो हमेशा उल्टा होता है कि मैं हमेशा सीधा होता हूँ तो वो अपसाइड डाउन होता है कि अगर मेरा सर ऊपर है तो उसका सर नीचे होता है और उसका पाँव ऊपर होता है, वो अपसाइड डाउन होता है. आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट, मुझे उसके पाँव के ऊपर पाँव रखना पड़ता है. यू कैन सी, आपका रिफ्लेक्शन है तो जहाँ पे, अगर ये तो ये दूर खड़ा है ना पिक्चर में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पानी के इधर बिल्कुल ठहरा होगा, उसको रिफ्लेक्शन नज़र आता है. तो उसको कहते हैं कि मेरे पाँव जो हैं हमेशा उसके पाँव के ऊपर होते हैं. विच इज़ अ सॉरी साइड, जो कि एक मुझे देखकर, सॉरी साइट मीन्स ये मंज़र मुझे देखकर दुख होता है कि काश मैं उसके पाँव के ऊपर पाँव रखकर ना खड़ा होता. विथ माई लेफ़्ट फुट ऑन हिज लेफ़्ट फुट, मेरा जो बायां पाँव है उसके बाएं पाँव के ऊपर होता है. माई राइट फुट ऑन हिज राइट, और मेरा सीधा पाँव उसकी सीधे पाँव पर होता है. आई रियली विश, मेरी हकीकत में ये ख्वाहिश है, ही वुड टॉक टू मी, कि वो मुझसे बात करता. ही सीम्स सो वेरी काइंड, ही सीम्स वो नज़र आता है, सो वेरी काइंड एक अच्छे दिल का इंसान नज़र आता है. फॉर क्योंकि, व्हेन आई लुक जब मैं देखता हूँ, एंड स्माइल एट हिम जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ और उसकी तरफ स्माइल करता हूँ, मुस्कुराता हूँ. ही डज़ द सेम आई फाइंड, तो मुझे पता चलता है कि वो भी वैसे ही ही डज़ द सेम, वो भी वैसे ही मेरी तरफ देखता है और वैसे ही मुझे स्माइल बैक करता है. बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, लेकिन मैंने कभी भी उसको बोलते हुए नहीं सुना. सो श्योरली ही मस्ट बी, ताहम मुझे यकीन है, ही मस्ट बी कि वो ज़रूर बोलता होगा. इन सम स्ट्रेंज लैंड, एक अजीब सी दुनिया में. द अदर साइड, जो दूसरी तरफ है, मेरी दुनिया की दूसरी तरफ है. जस्ट ऑपोजिट टू मी, बिल्कुल मेरे मुखालिफ जो उसकी दुनिया है वो उसमें यकीनन वो बोलता होगा. So dear students, you are requested to read this poem with translation twice or thrice in a day. Thank you and goodbye.